नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। अंग्रेजी में बोलूं या सम इयर्स बैक प्राइम मिनिस्टर came up with a concept which he claimed was designed to clean Indian political finance. And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond. The ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes, and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. Now, if you have any questions, please. Yes, Archana. I'll come to you. And now it is out. And as we are seeing it, a 50% like vote than opposition, whether it is the party or the PMC. So now what will be the further strategy? Look, the question is not whether it is 10%, 20%, 50% more. The question is that none of the opposition parties have access to contracts at the national level. None of the opposition parties are giving highway contracts, are giving defense contracts to these people. Okay? So, none of the opposition parties are controlling the CBI. None of the opposition parties are putting Pegasus on people's phones. None of the opposition parties are controlling the income tax department. None of the opposition parties are controlling
the Extortion Directorate. These are all controlled directly by the BJP and by the Prime Minister of India. And what we are seeing is criminal extortion from corporate India. Every single corporate knows this. They are scared, they are pressured, but this is what is going on. The question here is not opposition. The question here is that months after a contract is given, the corporate is suddenly giving electoral bonds to the BJP. The question here is, immediately after CBI is filing a case, ED is filing a case, the corporate is giving money to the BJP. This is the issue here, right? And it is blatant, and it is run by the Prime Minister of India. Yes. Technically, by law for extortion, you need a complaint. In a way, through electoral bonds, if BJP got 5,000 crores, Congress also got around 1,400. So these are allegations. What is the logical conclusion? These are not allegations; these are facts. If you look at these companies, you can see that certain of these companies have never donated money to the BJP, have got an ED case on them, a CBI case on them, and then immediately they are giving money to the BJP. You can see that there are a large number of shell companies here, right, which are connected to other companies, which are giving money to the BJP. It's upfront, right? So don't try and create this idea of technicality. Okay, you please be an impartial journalist, and you see what is in front of you, and don't try and muddy the waters. Right? There is no question here of what do you mean what happens next? What happens next is this is the criminal act that has been imposed on the people of India. That's what happens next. An investigation of this act hopefully takes place. Right? The Supreme Court acts on this, and as important, maybe it's about time some of you start writing about it. Yeah. हाँ जी. जो टॉप 5 डोनर्स हैं उसमें से 3 डोनर वो हैं जिनके यहाँ पर आईटी या सीबीआई आती है, उसके बाद वो डोनेट करते हैं. अब कल चुनाव आयोग की ओर से डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा चुनावों का, तो ये कितना अहम मुद्दा रहने वाला है 2024 चुनावों के लिए आप लोग? नहीं, ये देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा तो है, मगर इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो. और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है. प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा. तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता. और ये गडकरी जी ने नहीं कराया, ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है. सीधी सी बात है. हाँ अभिनव. एक मिनट. अभिनव. You're from the Hindu. So you're saying these companies are corrupt. These companies are funding, but most of these companies, they are operating from a state or 2 states where your government is there, Telangana or in Karnataka, and they are getting mega, for example, MEIL, Mega Engineering Infrastructure and Infrastructure Private Limited, and they got projects in your government in the states. Like No, Karnataka no, you're wrong. That's wrong. Our government in Telangana has come a few months ago. in Karnataka. Right? No, actually you're wrong. That's not what's happened. Again, we are not controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the income tax department, and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things, and you will see that there is a correlation between these things and the BJP. हाँ अजीत. एक मिनट. अजीत. मेरा सवाल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है. ये 5 साल 5 न्याय और 25 बहन की किताब. भैया हमारा फोकस आज ये भ्रष्टाचार पे है. कल नहीं. इसी पे चल रहा है. अच्छा, तो यात्रा कल खत्म होगा. ये जो चुनाव 2024 का है, ये आपके लिए डू एंड डाई का चुनाव क्या होगा?
और अगर कांग्रेस हारती है तो पहली बार होगा कि 15 साल के लिए कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी। अगर आप देखिए, आप इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? ये यात्रा के बारे में नहीं है, ये भ्रष्टाचार के बारे में है। आप लोग लगे रहते हो कि डिस्ट्रैक्ट करना है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के पूरे इंस्टीट्यूशंस को लेकर नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है? तो आप काइंडली इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, सब लोगों को समझ आ जाता है। सर मैं एक पॉलिटिकल सवाल पूछूं। हाँ जी। सर इस तरह से महाराष्ट्र की जो भी पार्टियां हैं, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, और भी अलग अलग प्रदेश में इन पार्टियों को दो टुकड़ा किया जो महाविकास आघाड़ी के साथ में है, उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा? और नहीं, वो दो टुकड़े में वो जो किया उसका पैसा कहां से आया? यहीं से तो आया। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है। और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। हाँ जी, एक मिनट हो गया। आपके सवाल हो गया, यही है ना हो गया कि ये जो पार्टीज को तोड़ा गया, कैमरा मत दीजिएगा, कैमरा के नीचे रखिएगा प्लीज। ये उसको ऑफ कर दीजिए, उसको ऑफ कर ये दीजिए। पार्टीज को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया। तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया। बट सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नींव तो यही है, फाउंडेशन तो यही है। हाँ जी, राहुल जी, आप एक्सटॉर्शन को लेकर, तो इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है आपका मानना है, तो इसको इस मुद्दे नहीं, मेरा मानना मतलब आपने पढ़ा नहीं इसके बारे में क्या? आपने अभी बोला तो आपने लिस्ट दी थी कंपनी की, आप मीडिया में हो ना? नहीं, जाएंगे क्या, हम रेज करेंगे, मगर आपका भी काम बनता है ना। कहां कर रहे हो आप? तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हुआ ही नहीं। तो मेरा कहना है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। आप फिर से वही सवाल पूछ रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सरकार नहीं चलाती है। हाँ, उस पर डिस्कशन हो सकता है, इंडिया गठबंधन में डिस्कशन हो सकता है, मगर पॉइंट ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, कंपनीज को एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और फिर एकदम बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। शेल कंपनीज उसमें भरी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो ढांचा है प्रधानमंत्री ने क्रिएट किया है, इनका ब्रेन चाइल्ड है। इन्होंने कहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स हिंदुस्तान की राजनीति को साफ कर देगा। हो गया, अभी ना प्लीज, No, we are doing one question. Thank you. you
Ask your question, please. राहुल जी, आपकी यात्रा दूसरी बार महाराष्ट्र में आई। पहली बार जब आए थे तो कांग्रेस पार्टी की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन अब जब आए हैं तो पूर्व सीएम से लेकर पूर्व सांसद तक पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, शिवसेना में चले गए। क्या नहीं, देखिए, पार्टी का साथ छोड़ के नहीं गए हैं। पैसा देकर, सीबीआई को यूज कर ईडी को यूज कर उन पर दबाव डाल के इनको पार्टियों को तोड़ा गया है। कांग्रेस को नहीं तोड़ा गया है। कांग्रेस का कोई नहीं गया है। कांग्रेस एक बिल्कुल साफ खड़ी हुई है वहां पे। हाँ, ठीक है, वो मिलिंद देवरा, वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी पार्टी इंटैक्ट है। जरूर अशोक चौहान गए, मिलिंद देवरा गए, हमारी पार्टी इंटैक्ट है। शिवसेना को, ये एनसीपी को पैसे से तोड़ा गया है। कैसे तोड़ा गया है आज मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी, न्यूज तक से रेडी। और चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी और हमारा जो गठबंधन है रिकॉर्ड मत से जीतने वाला है। हाँ जी, अमेठी से जुड़ा हुआ सवाल है। हमने पूरी यात्रा कवर की है और जब हम अमेठी पहुंचे तो जनता के बीच बहुत ज्यादा डिमांड ये थी कि राहुल गांधी जी जो है वो चुनाव लड़े अमेठी से। तो क्या ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? ये तो हमारी सीईसी है, खारगे जी हैं, वो ऑर्डर देंगे, मैं करूंगा जो भी उनकी राय है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, जो ऑर्डर मिलेगा करूंगा। वी कैन। हाँ, Thank you. लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड में जितनी कंपनी लिस्टेड है उसमें से आपको जिसने फंडिंग किया है उनके भी नाम सामने आएंगे। तो आगे चलकर ऐसा होगा क्या कि आपको जिसने फंडिंग किया है उनको भी सीबीआई और ईडी से फिर से टारगेट किया जाएगा? हो सकता है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।